মহিমাক্ষী মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগে IAS IPS হ'ব লাগে মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী সদায় সৰু হৈ থাকিব নেকি বা মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেৱল বেপাৰী হ'ব নেকি শাক পাচলি বেপাৰী বা ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাই হ'ব নেকি মুছলমানৰ বেপাৰী মুছলমানসকলে বা মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰিব লাগে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী সন্দৰ্ভত নীতিন গাডকাৰীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মন্তব্য আছে তাৰ আগতে তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী কিয় সদায় সৰু হৈ থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে পঢ়ি শুনি IAS হ'ব লাগিব IPS অফিচাৰ হওক মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী কেৱল ৰিক্সাৱালা শাক পাচলি বেপাৰী ঠেলাৱালা চাহ দোকানী হৈ থাকিলে নহ'ব মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰ হওক আৰু তাৰ বাবে ভালকৈ পঢ়ক মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুছলমান কি সদায় সৰু হৈ থাকিব নেকি বা সৰু বুলি সদায় ধৰা হ'ব নেকি মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক বা মুছলমানক পঢ়ি শুনি দেখুৱাই দিয়ক সমাজত ডাঙৰ মানুহ হৈ মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মছজিদত 100 বাৰ নামাজ পঢ়িলে নহ'ব ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে পঢ়া কিতাপো পঢ়ক ডাঙৰ মানুহ হওক বুলি মন্তব্য কৰিছে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুছলমানক লৈ নীতিন গাডকাৰীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক IPS হওক IAS হওক বুলি মন্তব্য কৰিছে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্দৰ্ভত বা মুছলমানসকলে মছজিদত 10 বাৰ নামাজ পঢ়িলে নহ'ব যিসমূহ পঢ়া কিতাপ আছে সেই পঢ়া কিতাপসমূহ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব পঢ়ি শুনি IAS IPS হওক ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী কেৱল ৰিক্সাৱালা শাক পাচলি বেপাৰী ঠেলাৱালা চাহ দোকানী হৈ থাকিলে মুছলমানসকল নহ'ব ডাক্তৰ হ'ব লাগিব মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে মুছলমান সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুছলমান সমাজৰ বাবে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব কিয় সদায় সৰু হৈ দেখুৱাব বা সৰু বুলি কিয় ধৰা হ'ব মুছলমানক বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব ভালকৈ পঢ়িব লাগিব পঢ়ি শুনি IAS হ'ব লাগিব IPS হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে মুছলমান সমাজৰ বাবে নীতিন গাডকাৰীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে মছজিদত 100 বাৰ নামাজ পঢ়িলে নহ'ব যিসমূহ পঢ়া কিতাপ আছে পঢ়া কিতাপসমূহ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है चाय की टपरी पान ठेला कबाड़ी का दुकान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर डॉक्टर वकील IAS IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा और इसलिए हम मस्जिद में 1 बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता उसके गुणों से बड़ा होता है और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है चाय की टपरी पान ठेला कबाड़ी का दुकान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर डॉक्टर वकील IAS IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा और इसलिए हम मस्जिद में 1 बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम
हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया, तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने सबसे ज्यादा आवश्यक मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया, तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया, तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा